Okay, so now this is the second unit, employment generation के लिए है. So these are the set of questions. जॉबलेस ग्रोथ क्या है, ऑटोमेशन डिजिटाइजेशन का क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो रहा है, तो वो सब के बारे में. अब देखते हैं. जॉबलेस ग्रोथ रेफर्स टू अ पैराडॉक्स, ठीक है, वेर इन एन इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस इकोनॉमिक एक्सपेंशन विदाउट अ कोरिस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ठीक है. तो जॉबलेस ग्रोथ क्या है, एक पैराडॉक्स है जहाँ पे जो इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस है, ठीक है, वो ये हो रहा है कि विदाउट अ कोरिस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस इकोनॉमिक एक्सपेंशन बट कोरिस्पॉन्डिंग इंक्रीज नहीं हो रहा है एम्प्लॉयमेंट में. In India, especially post the 1991 economic reforms, while the GDP growth accelerated, employment generation lagged significantly behind. This disconnect is particularly evident among youth, women, and rural population. तो हमने देखा कि हाँ ठीक है, while GDP is accelerated, employment generation बहुत पीछे है. क्यों? और जो डिस्कनेक्ट है ये इट इज़ एविडेंट अमॉन्ग द यूथ, women, एंड रूरल populations. सेक्टर्स जो है लाइक एग्रीकल्चर हैव सीन लेबर डिस्प्लेसमेंट while हाई ग्रोथ. जो सेक्टर्स हैं सच एज आईटी एंड फाइनेंस आर नॉट लेबर इंटेंसिव इनफ टू absorb द वास्ट लेबर सप्लाई. ठीक है. दिस imbalance underscores the urgent need to address the structural causes of jobless growth and promote inclusive development, employment generation. ठीक है. तो ये तो हो गया. जॉबलेस ग्रोथ क्या है, refers to a paradox wherein an economy experiences economic expansion without a corresponding increase in employment opportunities. In India, especially post the 1991 economic reforms, though the GDP growth accelerated, but जो economic employment opportunities है that lagged significantly behind. और ये चीज़ हमने ऑब्जर्व किया, it was quite evident among youth, women and rural population. Sectors like agriculture have seen labor displacement while growth high growth sector जैसे IT and finance are not labor intensive enough to absorb the vast labor supply. This imbalance underscores the urgent need to address the structural causes of jobless growth and promote inclusive employment generation. ठीक है. हाँ, तो ये imbalance जो है ये underscore the urgent need to address the structural causes of jobless growth and promote inclusive employment generation. World Employment and Social Outlook, India का perspective. So the ILO's World Employment and Social Outlook (WISO) highlights key global labor trends. For India, the report reveals a complex employment landscape marked by economic growth but weak job creation. ठीक है. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल आउटलुक का क्या इंडिया पर्सपेक्टिव है. जो आईएलओ है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, ये की ग्लोबल लेबर ट्रेंड्स हाईलाइट करता है, जिसमें इंडिया के लिए रिपोर्ट रिवील करता है कि कॉम्प्लेक्स एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप है बट इकोनॉमिक ग्रोथ और जॉब क्रिएशन है वो कम है. तो की एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स क्या है. अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ऑफिशियल अनएम्प्लॉयमेंट इज अराउंड 5 to 6%, बट इट अंडरस्टेट्स एक्चुअल जॉब स्ट्रेस ड्यू टू हाई अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मल वर्क. अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है. Youth unemployment remains a major issue, especially among educated urban youth. Underemployment है, many work in low quality informal jobs and without social insecurity. ठीक है. Informal या work quality, over 90% of India's workforce is informal, lacking job security, benefits और legal protections. Informal sector jobs जो है वो post pandemic return हुआ but remained unstable and poorly paid. ठीक है. तो इनफॉर्मेलिटी एंड वर्क क्वालिटी, 90% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इज इनफॉर्मल, लैकिंग जॉब सिक्योरिटी, बेनिफिट्स और लीगल प्रोटेक्शंस. ठीक है. इनफॉर्मल सेक्टर जॉब्स रिटर्न पोस्ट पैंडेमिक बट रिमेन अनस्टेबल एंड पुअरली पेड. जेंडर एंड पार्टिसिपेशन, तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन तो अमंग द लोएस्ट है ग्लोबली, 25% ही है. बैरियर्स इंक्लूड सोशल नॉर्म, सेफ्टी कंसर्न्स एंड लैक ऑफ फ्लेक्सिबल और नियर बाय वर्क. ग्रोथ वर्सेस एम्प्लॉयमेंट, तो इंडिया का जो जीडीपी है वो 6% के तो ऊपर है बट जॉब क्रिएशन लैग्स. ठीक है. इंडिया का जीडीपी इज ग्रोइंग अबव 6% बट जॉब क्रिएशन लैग्स लीडिंग टू जॉबलेस ग्रोथ. सो हाई पोटेंशियल सेक्टर्स लाइक टेक एंड ग्रीन एनर्जी आर नॉट लेबर इंटेंसिव इनफ. की चैलेंजेस क्या है, तो स्किल मिसमैच हो रहा है बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री नीड्स. अर्बन रूरल एम्प्लॉयमेंट गैप है, लोअर प्रोडक्टिविटी एंड इनफॉर्मल वर्क कंडीशंस, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन एंड अफेक्टिंग लो स्किल जॉब्स. ठीक है.
तो पॉलिसी रिकमेंडेशन है कि बूस्ट करो वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्री अलाइंड स्किलिंग प्रोग्राम, फॉर्मलाइज करो जॉब वाया एमएसएमई सपोर्ट, सिंप्लीफाइड लेबर लॉज एंड डिजिटल सिस्टम्स, improve women's workforce access through childcare, safety and transport, expand social security to gig economy workers, and promote inclusive growth in labor intensive sectors like manufacturing and services. तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है उसको प्रमोट करो इन लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज। ठीक है। तो ट्रेंड्स के पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक का इंडिया पर्सपेक्टिव के बारे में क्या है। ठीक है। तो जॉबलेस ग्रोथ हमने देख लिया कि क्या होता है, इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस ग्रोथ, इकोनॉमिक एक्सपेंशन, बट कोरेस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहा है। अब इंडिया में स्पेशली पोस्ट द 1991 जो रिफॉर्म हुआ उसमें जीडीपी ग्रोथ तो बढ़ा, बट जनरेशन लैग्ड, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन लैग्ड बिहाइंड। This disconnect is particularly evident among youth, women, and rural population. Sectors like agriculture have seen labor displacement, while high growth sectors जो IT है उसमें उतना labor intensive है नहीं to enough absorb the vast labor supply. So this imbalance underscores the urgent need to address the structural causes of jobless growth and promote inclusive employment generation. ठीक है, address the structural causes of jobless growth and promote inclusive employment generation. वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक इंडिया पर्सपेक्टिव क्या है, तो वीसो जो है द आईएलओ का जो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक है हाईलाइट्स की ग्लोबल लेबर ट्रेंड्स फॉर इंडिया। द रिपोर्ट रिवील्स अ कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप मार्क्ड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ बट वीक जॉब क्रिएशन। ये एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड क्या है, कि एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो 5 से 6% के अराउंड है, जो कि बताता है कि एक्चुअल जॉब स्ट्रेस है ड्यू टू अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड इनफॉर्मल वर्क। Youth unemployment remains a major issue, especially among educated urban youth. Underemployment, many work in low quality informal jobs without social security. Informality and work quality, तो over 90% of India's workforce जो है वो इनफॉर्मल में काम करता है, lacking job security, benefits और legal protection. Informal sector jobs जो है returned post pandemic but remained poorly paid. जेंडर पार्टिसिपेशन रेट वही है, फीमेल पार्टिसिपेशन जो है लेबर फोर्स पर इज अमंग द लोवेस्ट ग्लोबली, 25% ही है। और बैरियर्स जो है वो इंक्लूड करता है वही सोशल नॉर्म, सेफ्टी कंसर्न्स एंड फ्लेक्सिबल टू वर्क। ग्रोथ वर्सेस एम्प्लॉयमेंट, तो इंडिया जीडीपी ग्रोथ भले ही 6% के ऊपर है जीडीपी, बट जॉब क्रिएशन लैग लीडिंग टू जॉबलेस ग्रोथ। तो हाई पोटेंशियल सेक्टर्स जैसे टेक एंड ग्रीन वो लोग उतना अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, आर नॉट लेबर इंटेंसिव इनफ। की चैलेंजेस, स्किल मिसमैच बिटवीन एजुकेशन एंड इंडस्ट्री नीड, जो चाहिए वो स्किल मिसमैच हो रहा है, वो अर्बन रूरल एम्प्लॉयमेंट गैप हो रहा है, लो प्रोडक्टिविटी एंड इनफॉर्मल वर्क कंडीशंस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस या टेक्नोलॉजी डिसरप्ट कर रहा है लो स्किल जॉब्स। ठीक है। पॉलिसी क्या है कि वोकेशनल ट्रेनिंग दो एंड इंडस्ट्री अलाइन करो। ठीक है। एमएसएमई सपोर्ट करके एमएसएमई को फॉर्मलाइज जॉब का स्ट्रक्चर दो, इम्प्रूव वुमेन वर्क फॉर एक्सेस, expand social security to gig and informal workers, and promote inclusive growth in labor intensive sectors like manufacturing and services। तो inclusive growth उनको भी प्रोवाइड करो जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में है। ठीक है। ट्रेंड इन जॉबलेस ग्रोथ इन इंडिया, अब जो पीएलएफएस है पीरियोडिक लेबर फोर्स सप्लाई, उसमें ये पता चला कि while overall employment unemployment stands around 4.9%, so youth unemployment remains a major concern with over 5 million jobless individuals aged 15 to 29 years as of mid 2025। Simultaneously जो ईपीएफओ का जो डेटा है सोच होंगे मार्जिनल इंक्रीज इन फॉर्मल जॉब क्रिएशन, जिसमें 1.89 पिछले साल था मिलियन है ईयर, इस साल बस 1.9 मिलियन ही ऐड हुआ है, फॉर्मल जॉब क्रिएट हुआ है। ठीक है। सो द कॉजेज ऑफ जो जॉबलेस ग्रोथ आर मल्टीफेसिटेड। Sectoral bias, so just the economic growth has been led by capital intensive sectors like IT and formal manufacturing, which generate fewer jobs per unit of output compared to labor intensive sectors। ठीक है। sectoral bias है जैसे economic growth has been led by capital intensive sectors like IT and formal manufacturing, ठीक है, which generate fewer jobs per unit compared to labor intensive sectors। Informality higher, जैसे over 90% of India's workforce is employed informally, lacking job security and social protection।
तो इनफॉर्मेलिटी ज़्यादा है। 90% जो वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इनफॉर्मली। स्किल का मिसमैच, educational institutions often do not equip with market relevant skills, limiting employability. Restrictive labor laws, complex and rigid labor regulations discourage businesses from expanding formal employment. Weak private investment है जिसमें post pandemic economic uncertainty and policy bottlenecks have dampened hiring in the private sector. तो जॉबलेस ग्रोथ का क्या क्या रीजन है? सेक्टरल बायस, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में हो रहा है, जो आईटी और फॉर्मल ये सब में ही हो रहा है, ठीक है। जो भी लेबर इंटेंसिव मार्केट है वहाँ पर हो ही नहीं रहा है। हाई इनफॉर्मेलिटी है, 90% से ज़्यादा वर्कफोर्स एम्प्लॉयड इनफॉर्मली हो, ठीक है। लैकिंग जॉब सिक्योरिटी एंड सोशल प्रोटेक्शन। स्किल का मिसमैच हो रहा है, जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफन डू नॉट इक्विप स्टूडेंट्स विद मार्केट रिलेवेंट स्किल्स, ठीक है। स्किल मिसमैच, हाई इनफॉर्मेलिटी, सेक्टर वाइज। अब रिस्ट्रिक्टिव लेबर लॉज, कम्प्लेक्स एंड रिजिड लेबर रेगुलेशंस, तो जो भी इनफॉर्मल है उनको फॉर्मल में मूव करने के लिए नहीं इजी हो रहा, मतलब इट डिस्करेजेस बिजनेस फ्रॉम एक्सपेंडिंग। और वीक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक अनसर्टेनिटी एंड पॉलिसी बॉटलनेक्स हैव डैम्पेंड हायरिंग इन द प्राइवेट सेक्टर। स्ट्रक्चरल कॉजेज क्या हो सकते हैं? तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी, ड्यू टू स्लो जीडीपी ग्रोथ जॉब क्रिएशन कैन बी लिमिटेड, especially because of the transition from traditional technology to modern tools. तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजी, ड्यू टू जीडीपी ग्रोथ जो स्लो हो रहा है, जॉब क्रिएशन कैन बी लिमिटेड, ठीक है। बिकॉज of the transition from traditional energy to modern tools, rapid changes in technology can displace the labor force. स्किल मिसमैच हो रहा है एजुकेशन, तो टेक्नोलॉजी तो आ रहा है, स्लो जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, बट जॉब क्रिएशन इज लिमिटेड, स्पेशली बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशनल शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल जो टेक्नोलॉजी है टू मॉडर्न टूल्स। स्किल मिसमैच जो हो रहा है एंड एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस बिकॉज ऑफ द मिसमैच बिटवीन द नॉलेज imparted एंड द मार्केट कंडीशंस, ठीक है। लो लेवल्स ऑफ एजुकेशन विद लो क्वालिटी कैन हिंडर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। प्राइवेट सेक्टर क्या है? ड्यू टू द फेलियर ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, टू अकोमोडेट द अवेलेबल वर्कफोर्स, द जॉबलेस ग्रोथ इज परसिस्ट डिस्पाइट इकोनॉमिक एक्सपेंशन, तो वो लोग अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। अब कल्चरल फैक्टर्स एंड प्रेफरेंस, तो कल्चरल फैक्टर्स एंड प्रेफरेंस क्या है? Factors like the culture and the nature of jobs often creates an atmosphere that creates a disguised employment and a mismatch between the available job seekers. ठीक है। cultural factor and preference, factors like the culture and the nature of job often creates a disguised employment and a mismatch between the available job seekers, ठीक है। अब मेजर्स क्या है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए? इंक्लूसिव एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो लेबर मार्केट एनहांसमेंट सिस्टम, देयर शुड बी अ रिपोजिटरी ऑफ द इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल एंड द स्किल्स दैट ही और शी possesses। तो एक रिपोजिटरी है इंफॉर्मेशन एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल एंड द स्किल्स दैट ही और शी possesses, एन ऑटोमेटिक मैचिंग सिस्टम होना चाहिए ऑफ द जॉब एसोसिएटेड एंड द स्किल्स available will help in identifying and cater the needs in a better manner. Labor law reforms to adopt the formal sector labor laws for a balanced blend of flexibility and security. हम्म, तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी और सिक्योरिटी भी मिलना चाहिए। लेबर मार्केट एनहांसमेंट सिस्टम, जिसमें ऑटोमेटिक मैचिंग मैचिंग सिस्टम होगा बिटवीन द स्किल ऑफ द जॉब एंड द जॉब विच इज अवेलेबल, ठीक है। बूस्ट फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन, to prevent sexual harassment at work there should be an amendment in the laws and a string grievance addressal system on a timely basis। तो ये जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है उसको बूस्ट करेगा। इट विल प्रिवेंट सेक्सुअल harassment at work, there should be an amendment in the laws and a string grievance addressal system on it, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट, due to agricultural value present in the rural, the state should start to procure and harness the quality of the individuals possess, ठीक है। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तो स्पेंड करो हेल्थ स्कूल एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। वैकेंसीज जो है पुलिस या अदर पोस्ट शुड यूटिलाइज द अवेलेबल वर्कफोर्स। कंक्लूजन क्या है? इंडियाज चैलेंज ऑफ जॉबलेस ग्रोथ इज डीपली स्ट्रक्चरल, ठीक है, रूटेड इन अ मिसअलाइनमेंट बिटवीन ग्रोथ ड्राइवर्स एंड लेबर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। इंडिया का जो चैलेंज है वो जॉबलेस ग्रोथ इज डीपली स्ट्रक्चरल, रूटेड इन मिसअलाइनमेंट बिटवीन ग्रोथ ड्राइवर्स एंड लेबर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ग्रोथ हो रहा है लेकिन अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। टू ट्रांसफॉर्म ग्रोथ इनटू इंक्लूसिव डेवलपमेंट द कंट्री मस्ट अडॉप्ट अ होलिस्टिक स्ट्रेटेजी।
ठीक है, दैट कंबाइंस लेबर मार्केट रिफॉर्म्स, टारगेटेड स्किलिंग, जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसी एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जैसे क्या हुआ कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए कंट्री मस्ट अडॉप्ट अ होलिस्टिक स्ट्रेटजी दैट कंबाइंस लेबर मार्केट रिफॉर्म, ठीक है, टारगेटेड स्किलिंग एंड जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसीज एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। तो राइट अप्रोच जैसे स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना एंड स्टार्टअप इंडिया कैन ड्राइव एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर ऑल। ठीक है, तो ये सारे स्कीम्स है, स्किल इंडिया मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना एंड कैन ड्राइव एम्प्लॉयमेंट, ये सब भी देख लेंगे। ठीक है, दैट इज इट।